Class 8. Good morning, boys. Good morning, girls. Are Jam? Good morning to your parents and grandparents. Supplementary reader. It so happened lesson number 3, the selfish giant, paragraph, page 22. Every afternoon, this is line number 14. Every afternoon means every day in the afternoon, रोज दोपहर के बाद, when school was over, when school was off, जब स्कूल में छुट्टी होती थी तो the children used to visit Giant's garden and play with him. Children used to come to the Giant's garden and play with him, but the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन वो little boy whom the giant loved, जिसको कि giant love करता था, was never seen again, वो फिर दिखाई नहीं दिया. The giant was very kind to all the children. giant सभी children के प्रति बहुत ही kind था, generous था. Yet he longed for his little friends and often spoke of him. और तब भी he longed for his little friends. He had great desire to see his little friends. He longed for his little friend means he had great desire to see his little friend, to see the little boy. And often spoke of him. और प्राय उसके बारे में पूछता था. How I would like to see him means I would not be able to see him. How I would like to see him means I would not be able to see him. Years went by. Went by means passed, P-A-S-S-E-D. वर्षों बीत गए. And the giant grew very old. Grew means became. B-E-C-A-M-E. और giant बहुत old हो गया. And feeble. और वीक हो गया, शरीर से कमजोर हो गया. He could not play about anymore. अब वो खेल नहीं सकता था. So he sat in a huge armchair. So he sat in a very big armchair. तो वो एक बहुत बड़ी कुर्सी में बैठता था. And watched the children. और चिल्ड्रन को देखता था playing their games, at their games means playing their games. At work, working, children at work, working at their games means playing games. And watch the children, और चिल्ड्रन को वॉच करता था, देखता था
खेलते हुए, and admired his garden and praised his garden, और अपनी गार्डन को, उसकी गार्डन को प्रेज करते थे। I have many beautiful flowers. मेरे पास तमाम ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, he said. But the children are the most beautiful flowers of all. लेकिन बच्चे अत्यंत सुंदर फ्लावर्स में से हैं। एक सेंटेंस आप लिख लीजिए, एज ए कैपिटल, as sure as you are, as sure as eggs, श्योर की स्पेलिंग है SURE, जनरली लोग इसको श्योर कहते हैं, आप भी श्योर कहें, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है श्योर। as sure as X is X, EGGS, as sure as X is X, full stop, इक्वल, इसकी मीनिंग भी लिख लीजिए। समथिंग इज, STH के लिए से समथिंग के लिए शॉर्ट में लिखिए, STH, समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू, समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन ठंडी का समय था, सुबह में, मॉर्निंग में, ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वाज ड्रेसिंग। जॉन जो है वो ड्रेसिंग कर रहा था, कपड़े पहन रहा था, तो उसने विंडो से देखा। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, विंडो के से बाहर की ओर देखा जब वो ड्रेसिंग कर रहा था। He did not hate the winter now. अब जायंट विंटर से हेट नहीं करता था, घृणा नहीं करता था। For he knew, क्योंकि वो जानता था, that it was merely the spring asleep. For he knew, क्योंकि वो जानता था, that it was merely the spring. Merely means only, केवल स्प्रिंग है, जो कि asleep है, जो कि सोया हुआ है, जो कि सो रहा है। And that the flowers were resting, और फ्लावर्स जो है वो आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। Suddenly he rubbed his eyes, एकाएक उसने अपनी आंखों को रब किया, रगड़ा, स्क्रब, he rubbed his eyes in wonder, आश्चर्य में आंखों को रगड़ा, क्योंकि जो कुछ वो देख रहा था इस पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। और ऐसा जब होता है तो आप या हम या कोई भी आंखों को एक दो बार रगड़ के फिर श्योर करना चाहता है कि जो कुछ वो देख रहा है सही देख रहा है। तो सडनली रब्ड हिज आईज इन वंडर, आश्चर्य के साथ उसने अपनी आंखों को रब किया, एंड लुक्ड, और देखा। बार बार देखा। It certainly was a marvelous sight. Marvelous means wonderful. Marvelous means wonderful. Sight means seen. SCENE, दृश्य। It certainly means definitely. ये निश्चित रूप से
अद्भुत नज़ारा था, वंडरफुल साइट थी, वंडरफुल दृश्य था, आश्चर्यजनक दृश्य था। क्या था? इन द फॉरदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के सबसे दूर वाले कोने में वाज अ ट्री, एक पेड़ था, क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, जो कवर्ड था, ढका हुआ था ब्यूटीफुल वाइट फूलों से। सबसे दूर के कॉर्नर, गार्डन के सबसे दूर के कॉर्नर में एक पेड़ था जो कि ब्यूटीफुल वाइट फूलों से, ब्लॉसम्स से, ब्लूम्स से, फ्लावर्स से वाइट कवर्ड था, कंप्लीटली कवर्ड था, वाइट पूरी तरह से। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी शाखाएं, उसकी डालें गोल्डन थी, येलो थी, एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उनसे सिल्वर फ्रूट लटक रहे थे, सफ़ेद फल लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट, और अंडरनीथ इट आया उसी ट्री के लिए, और पेड़ के नीचे जो फॉरदेस्ट कॉर्नर पे जो ट्री है, उस पेड़ के नीचे स्टूड द लिटिल बॉय, वो लिटिल बॉय खड़ा था। ही हैड लव्ड, जिसको जायंट ने लव किया, वही खड़ा था। Downstairs, stand joint in the gateway. Giant बहुत ही हैप्पीनेस में, Giant was very happy and in great joy he ran downstairs. वो सीढ़ियों से नीचे की ओर तेजी से उतरा, and out into the garden, और गार्डन के दूर चला गया, दूर गया, and out into the garden, ran downstairs, ran the giant in great joy, and out into the garden. He hastened across the grass. Hastened means, इसका प्रोनाउंसिएशन है hastened, moved quickly. Hastened means moved quickly. He moved quickly across the grass. ग्रास पर इस पार से उस पार तेजी से गया, एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और चाइल्ड के पास आ गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, और जब वो क्वाइट क्लोज आ गया, क्वाइट नियर आ गया, केम क्वाइट क्लोज, हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर। हिज फेस मीन जायंट्स फेस, जायंट का फेस, ग्रू मीन्स बिकेम रेड, लाल विद एंगर, गुस्से से। और जब वो आ गया बिल्कुल नजदीक, क्वाइट क्लोज, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, और अभी ऊपर आया था ट्री क्वाइट कवर्ड, क्वाइट मीन्स कंप्लीटली, क्वाइट क्लोज बिल्कुल नजदीक। So his face grew red, his face became red with anger, and he said, and the giant said, who hath dared, hath means H-A-S, has, dare means हिम्मत करना, साहस करना,
who hath dared to wound thee, to wound, घायल करना, to injure, I-N-J-U-R. Thee means you, hath means has, thee means you, to wound means to injure. Who had such courage that he wounded you, ये किसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि तुमको घायल कर दिया? क्योंकि for on the palms of the child's hands, क्योंकि चाइल्ड के हाथों की पाम्स पर, हथेलियों पर, the prints of 2 nails. दो prints means marks, M-A-R-K-S, निशान. दो नेल आपने देखा होगा, आप चेयर में देखिए जो वुडन की है या टेबल है वुडन का है, दरवाजा है, विंडो है, उसमें नेल आपको देख लो मिलेगा, नेल से ठोका रहता है उसमें. क्योंकि चाइल्ड के हथेलियों पर 2 नेल्स के निशान थे, मार्क्स थे, प्रिंट्स थे. एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, और 2 नेल्स के मार्क्स वर ऑन द लिटिल फीट, नन्हे पैरों पर भी थे. Who hath dared to wound thee, cried the giant. चिल्ला करके ड्रोइंट ने कहा कि किसकी ऐसी हिम्मत पड़ी जो तुमको इंजर कर दिया, तुमको घायल कर दिया. टेल मी, मुझे बताओ. That I may take my big sword and slay you, जिससे कि मैं अपनी बड़ी तलवार उठाऊं. एंड स्ले यू, स्ले मीन्स किल, KILL. That I may take my big sword, कि मैं अपनी बड़ी तलवार को उठाऊं और उसको वध करूं. Next page. नहीं, answered the child. चाइल्ड ने उत्तर दिया, नहीं. But these are the wounds of love. यानी these are not the wounds of anger, these are not the wounds of enmity. ये एंगर के wounds नहीं है, ये क्रोध के घाव नहीं है. Thou means you. Art means A-R-E-R. Who art thou means who are you. आप कौन है? Said the giant. giant ने कहा. And a strange awe. A means विस्मय, वा में छोटी की मात्रा, आधा सा, म और या.
और एक विचित्र, स्ट्रेंज विचित्र विस्मय उस पर आ गई नींद। एंड ही नेल्ट, और वो घुटने के पर बैठ गया बिफोर द लिटिल चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड के सामने जायंट घुटने के बल बैठ गया। चेहरे पर जायंट के चेहरे पर स्ट्रेंज ऑवेल विस्मय का, अद्भुत विस्मय का भाव आ गया। एंड ही नेल्ट, और वो घुटनों के बल बैठ गया। नेल्ट पास्ट टेंस है नील का, KNEEL, घुटनों के बल बैठना। नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड के सामने घुटनों पे बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जॉइंट, और जॉइंट को देख के चाइल्ड ने भी मुस्कुरा दिया। एंड सेड, और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन। लेट मीन्स अलाउड, लेट का पास्ट टेंस लेट होता है। यू अलाउड मी प्ले, तुमने खेलने के लिए अनुमति दिया। यू अलाउड मी प्ले, तुमने मुझको खेलने की अनुमति दिया। वंस मीन्स एक बार, इन योर गार्डन, अपने गार्डन में। टुडे, आज, उस एहसान को चुकाने के लिए, तुम्हारे उस काइंडनेस को वापस करने के लिए, रिटर्न करने के लिए। टुडे यू शैल कम विद मी, आज तुम मेरे साथ चलोगे टू माई गार्डन, मेरी गार्डन, विच इज पैराडाइज। पैराडाइज नहीं है इसका प्रोनाउंसिएशन, पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है, जो कि पैराडाइज है, स्वर्ग है। And when the children ran in, और जब बच्चों ने दौड़ते हुए गार्डन में प्रवेश किया, ran in means ran in the garden, ran into the garden, that afternoon, उस दिन दोपहर के बाद जब स्कूल से छुट्टी हुई और चिल्ड्रन आए और दौड़ के अंदर गए, तो they saw the giant lying dead, मृत पड़ा हुआ, lying means पड़ा हुआ, dead means मृत, under the tree, पेड़ के नीचे, all covered with white blossoms, the whole body, और उनकी पूरी शरीर सफेद फूलों से ढकी हुई थी, और उसकी पूरी शरीर सफेद फूलों से ढकी हुई थी। Now, question answer. Open your notebook, page number 20.
comprehension test. Question number 1. Why is the joint called selfish? Answer. The giant is called selfish. The giant is called selfish because he did not allow anybody, anybody, even स्कूल के बच्चों को भी, even school children to play in his garden. Full stop. He built BUILD a high wall, एक ऊंची दीवार. He built a high wall around the garden, garden के चारों ओर. Around the garden, round the garden, about the garden, to keep the children away. बच्चों को बाहर रखने के लिए, तो बच्चे बाहर ही रहें, गार्डन के अंदर ना आए. To keep the children away. Question number 2. On one occasion, the children said, एक अवसर पर यानी एक बार चिल्ड्रन ने कहा कि हाउ हैप्पी वी आर हियर, वी आर वेरी हैप्पी हियर. लेटर बाद में दे सेड, उन्होंने कहा, चिल्ड्रन ने कहा कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ कितने हैप्पी थे. आंसर. In both the cases, दोनों केसेस में, दोनों मामलों में, दोनों वाक्यों में, in both the cases, they are referring, REFE, REFERRING, they are referring to the G capital, giants apostrophe S,
In both the cases, they are referring to the giant's garden. Full stop. Question number 3, one Norman. When spring came, it was still winter in the world. जब स्प्रिंग ने विजिट किया तो गार्डन में अभी भी विंटर था. What does winter stand for or indicate here? यहाँ पर विंटर का क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है? आंसर, विंटर स्टैंड, विंटर इन्वर्टेड कॉमन होगा, स्टैंड्स फॉर स्नो, फ्रॉस्ट एंड हेल. To Indoman. Winter has been presented like a story with its own characters and the activities. Describe the story in your own words. Ready? In the giant's garden, is comma spring refused to come because giant was cruel and selfish. Full stop.
There were no children to play. There were no children to play. And no birds to sing. That's all. Question number 4, 1 and 1. Was the giant happy or sad over the state of the garden? Answer. The giant was very sad. Giant was very sad. Full stop. He couldn't understand why the spring never came. Why the spring never came, comma, nor the summer. Full stop. Never came, nor the summer. The giant was very sad. He couldn't understand why the spring never came, comma, nor the summer. Full stop. The autumn, A capital, AUTUMN. The autumn gave golden fruit. The autumn gave golden fruit to every garden. Except the EXCEPT G capital giants, except the giants, GIANT apostrophe S, where winter ruled the whole year. That's all for today. आज का ओवर. कल भी सप्लीमेंट्री रहेगा.